Hello everyone, good evening. It's very good to see all of you this evening. We are just about 60 hours away from the first vote to be cast, and the rhetoric, as can be expected in Bihar, is getting sharper. After all, much is at stake both for the NDA and the Mahagathbandhan, the two alliances that are making a go for power in one of India's most backward states. Officially India's most backward state, by the way. And so it is open season for netas saying whatever it takes to get them to the headlines. If last week was dominated by Rahul Gandhi's dance for vote jibe at the Prime Minister, this week has started with Modi ji and Yogi ji doing the honors. UP's Chief Minister, who is one of the BJP's star campaigners in Bihar, has stirred the poll and political circle by comparing Rahul Gandhi, Tejasvi Yadav and Akhilesh Yadav to Gandhiji's three monkeys. This happened today. He's called them, and I'm quoting him here, Pappu, Tappu, Appu, if you please. The Mahagathbandhan, as can be expected, has gone bananas and a war of words has started. Take a look. इंडी गठबंधन के तीन और बंदर आ गए। ये तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। तो हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए, योगी हनुमान जी का अपमान करे। अब इसमें क्या ही बोलें, जनता देख रही है, जनता सुन रही है। जब उनकी भाषा फिसलती है तो ये साफ लगता है कि बिहार में बहुत साफ गोई के साथ आदरणीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का एक पैरामीटर है। और जब लोग गाजा फूंक लें, गाजा फूंकने के बाद तो आदमी कुछ भी बोलता है। Ladies and gentlemen, Bihar has 243 seats. The halfway mark is 122, which means whichever alliance needs to form a government needs to get at least 122 MLAs. 5 years ago, that's the last election, the battle was a close one, and so no one is taking a chance this time, certainly not the Prime Minister. Today he has taken pot shots at Lalu Prasad Yadav and his family, calling them the most corrupt parivar in the state. Not just that, he has also gone on to react to pictures of Lalu Prasad Yadav's grandchildren celebrating Halloween. Let's put those pictures on air actually. The Prime Minister has said that those who cannot respect Chhath Maiya find great pleasure in celebrating Western traditions. But it was his katta comment that has the opposition all riled up. आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करें, गुजरात में जाइए तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना। कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसी भाषा उपयोग किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी जी हो या लाल बहादुर शास्त्री हो, या ऐसा ही बोलते रहते। Now, ladies and gentlemen, the conspiracy theory that the Prime Minister has been floating for some time in Bihar now is that Rahul and Tejasvi aren't the best of friends right now, and that the RJD has forced Rahul Gandhi to declare Tejasvi Yadav the chief ministerial face. The Congress's counter theory to that is, well, wait and watch, the BJP will never make Nitish Kumar the chief minister. Nitish Kumar, ladies and gentlemen, is Bihar's longest serving chief minister with the ideological flexibility of a 10-year-old. He has presided over the state for some 18-19 years with various partners and freebies, but has done little to pull his state out of crippling backwardness. Today, at a rally, Priyanka Gandhi questioned his track record and said the Prime Minister is doing everything to divert attention from Bihar's backwardness, which is why, according to her,
He sees everything as a personal insult and then plays the victim card. सुझाव देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ न हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। Bihar, ladies and gentlemen, has one of the lowest per capita income and literacy rates in India. Its bridges are such fine works of art that they keep collapsing, and the job scene is as dry as the Sahara Desert. When Bihar has issues that need to be spoken about, real issues that need to be spoken about, why are we getting Bharatnatyam and Kattas and Halloween from our leaders? Is it because it is easier to deliver rhetoric than to deliver actual jobs? My guest this evening, thank you all very much. Ravi Tripathi, spokesperson of the Bihar BJP, joining us on the broadcast. Namaskar, Ravi ji. Dr. Uday, good to have you back. Namaskar. Ravi ji and Dr. Uday will be batting on the same team. Therefore, they are sitting close to each other. Sujata Paul, spokesperson of the Congress Party. Sujata ji, namaskar, good evening. And Ghanshyam Tiwari, national spokesperson of the Samajwadi Party, back with us on the show after a very long time. Mr. Tiwari, thank you very much and welcome. Sujata ji, pehla sawal aapse. Please help me understand how Yogi Adityanath calling Rahul Gandhi, Tejasvi Yadav and Akhilesh Yadav Pappu, Tappu and Appu is an insult to Hanumanji. Matlab, ye from which stretch of imagination is this an insult to Hanumanji? When you talk about the Vanar, Vanar is revered in India. हाँ. And Vanar का अगर नाम आपको इतनी आसानी से लग रहा है कि आप कहेंगे, तो फिर ठीक है, अगर आप कूद फांद को इसी तरह से देखते हैं तो आप इंसल्ट ही कर रहे हैं. But if you remember, he has insulted Lord Hanuman earlier also. Do you remember before, in about 2018, he had called Hanumanji a Dalit because he does not respect Dalits. For us, a Dalit would be as respected as him, but he does not respect Dalits, and he had equated Hanumanji to Banbasi, to Dalits. This shows his mindset and mentality. For us, every bit of creation of God, of nature is respected, but when he talks about leaders of opposition in these terms, it clearly shows what kind of a mindset he has. And the fact remains that in Bihar today, when you have to talk about the rising crime rate, the corruption over there, and might I also remind you of the corruption which have been brought out in the past, which have gone into the cold storage, should also be spoken about today. But the lawlessness is being covered by these kind of statements, and about who is insulting whom. We know the Prime Minister keeps doing that, right? ठीक है, okay. But this is my view. And of course, everyone is free to disagree with my view because, my view is my view and can be no one else's view. But aisa hai Ghanshyam Tiwari, saying that, calling the three leaders of the Mahagathbandhan, Pappu, Tappu and Appu is insulting Hanumanji is almost like, it's almost a stretch like, the Bharatnatyam jibe being stretched into insulting Chhati Maiya. That wasn't an insult to Chhati Maiya and this isn't an insult to Hanumanji. All of us know that. But ab netas ka hum kya kare? We are just so used to them, putting things out of context that one doesn't know what to say. Good evening, Shreya, to you, my fellow co-panelists and the viewers. We have a Prime Minister whose every utterance in an election rally proves that the accusations of his degree not being real are rightfully placed. Your Prime Minister has to use the language of katta. What is people like Yogi Adityanath? What are people like Yogi Adityanath going to do? Yogi Adityanath is not even a leader that has a point of view. He is known by his hate speeches, his remarks like this,
and further continuous efforts wherever BJP decides that in this election, in this constituency, we want to build hate and divisiveness, they will send Adityanath there. So we have a prime minister along with Adityanath whose goal is to ensure that the basic thing that Bihar suffers from, 13 crore families, 13 crore people, roughly 1.5 crore families. Today, every family has a person, either a student or a youth, who's migrating out of Bihar for education or job. This is what BJP has given in 20 years to Bihar. After 11 years of Prime Minister being voted from Bihar every election. And not only that, the model that Bihar will remain a Mazdoor factory for the Prime Minister, while Gujarat becomes the money factory for BJP, is what the Prime Minister thinks about when he visits Bihar. This is being exposed now when BJP is looking more and more like a Gujarat party who's out there to win Bihar for the Mazdoor it wants from Bihar and not for the factories that Bihar needs. Then the Prime Minister language will expose that. Okay. I think Prime Minister or Adityanath are just trying to use a language that will also push opposition to respond to it. To your question, the opposition is responding to it, but that is not the language that Bihar needs right now. Ravi Tripathi, is this the sort of language not just Bihar, but any state in India deserve? You know, last week, Rahul Gandhi had come under a lot of criticism for his vote for dance jibe at the Prime Minister, right? And rightfully so, the criticism had come. How do you explain the Prime Minister using words like katta? How do you explain Yogi Adityanath calling leaders of the Mahagathbandhan Teen Bandar? How do you justify that? How do you justify this language? भाई इलेक्शन है माना, लेकिन मर्यादा भी तो कोई चीज होती है ना? नहीं, लेकिन देखिए मर्यादा कौन तोड़ता है, पहले ये भी आपको गौर करना होगा किस तरह से उनकी तरफ से मर्यादा तोड़ा गया। प्रधानमंत्री को कहा गया कि वो वोट के लिए नाच भी सकते हैं। हाँ। तो मर्यादा उनकी तरफ से तोड़ी गई। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो गांधी जी के 3 बंदर कहना कहाँ से अपमान हो जाता है? गांधी जी के 3 बंदर तो सांकेतिक है, और उन्होंने कहा है कि 3 बंदर का मतलब यह है कि एक बंदर को जो दिखता नहीं है। हाँ। जो डेवलपमेंट हो रहा है सड़क पे, जो शहर में चाहे देश में जो डेवलपमेंट होता है उसको नकारता है, जिसको वो टप्पू कहते हैं, जिनको टिप्पू कहा भी जाता है। हाँ। घनश्याम जी बताएंगे उनका नाम टिप्पू है, उससे टप्पू उन्होंने खाली चेंज किया है। हाँ। उसके अलावा राहुल गांधी, जिनको तो उनकी पार्टी के लोग पप्पू कहते रहे, जो उनको 2004 में लॉन्च करने वाले जो उनकी पार्टी के लोग थे। हाँ। आप जानते होंगे, शायद पंकज शंकर नाम था, मीडिया से ही जुड़े रहे। हाँ। उन्होंने तो फिल्म बनाई है लव यू पप्पू करके उनके ऊपर। हाँ। तो राहुल गांधी को तो उनकी पार्टी के लोग पप्पू कहते रहे, और ये एक संज्ञा है और कहीं ऐसा अपमानजनक शब्द नहीं है। देखिए, अगर अपमान की बात होती है तो आप गौर कीजिए कि कांग्रेस की तरफ से जो एक संत हैं, योगी जी संत हैं, अपने वो दीक्षा ले चुके हैं, उनका नाम योगी आदित्यनाथ है, उनका नाम कैसे दिया जाता है? हाँ। अजय सिंह बिष्ट उनके नाम को कहा जाता है। हाँ। प्रधानमंत्री को नीच कहा जाता है इसी पार्टी की तरफ से। हाँ। तमाम सारे संज्ञा सर्वनाम जो भी कहा जाए इनकी तरफ से लिया जाता है, उसको प्रधानमंत्री तो कहीं काउंटर नहीं करते हैं, उसका जवाब देते हैं वोट से। कहा जाता है ना जी, सचिन तेंदुलकर का बल्ला बोलता है। प्रधानमंत्री काउंटर नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री तो काउंटर ही काउंटर कर रहे हैं। नहीं, दूसरी तरह से काउंटर करते हैं, इनकी आलोचना इनकी तरफ नहीं करते हैं। मतलब रेखा गुप्ता जी का जो यहाँ पे पूरा यमुना वाला कांड था, उसको प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि ये तो छठ मैया का अपमान है। छठ मैया का तो बिल्कुल अपमान नहीं था, जैसे कि आज जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है वो हनुमान जी का अपमान नहीं है। ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है भाई। श्रेया जी आप गौर कीजिए कि उस दिन छठी मैया का एग्जाम्पल देते हुए कि छठ के घाट पर जा रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, अलग से स्विमिंग पूल बनाया जा रहा था, उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा इसलिए हमने छठी मैया का अपमान कहा। हमने हनुमान जी की बात कहीं नहीं कही है, आपने हनुमान जी को कहीं से कोट किया है। हमने उसलिए कोट किया कि आपने छठी मैया को कोट करके ये बातें प्रधानमंत्री को कहा कि वो नहा भी सकते हैं वहां और नाच भी सकते हैं मंच पे। इस वजह से उनकी आलोचना की गई थी और कहा गया था कि छठी मैया का अपमान उन्होंने किया। ठीक है, जहां तक प्रधानमंत्री की बात है और कट्टा वाली बात भी अभी आप कह रही थी, तो आप जानती हैं इस बिहार का कल्चर, ये बिहार क्यों पीछे गया, जिस बात के सारे एग्जाम्पल तभी आप दे रही थी कि 15 साल किसी राज्य के साथ ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से 15 साल पीछे ले गया है। और उस 15 साल में बिहार में क्या नहीं हुआ? मतलब आपको पलायन भी हुआ, इंडस्ट्री भी बंद हुई, आपके लोग मारे भी जा रहे थे, खुलेआम गुंडागर्दी चलती थी, खुलेआम अपहरण चलता था, और अपहरण जैसी फिल्म बनी इसी बिहार में। इतने अपहरण हुए कि अपहरण जैसी फिल्म बनी बिहार में। अब डाटा निकाल के देखिएगा, तमाम सारी चीजें। तो बिहार के उन चीजों को, दिनों को याद दिलाना लोगों को जरूरी है, इसलिए प्रधानमंत्री बार-बार उस कट्टे की याद दिला रहे हैं। हाँ, घनश्याम तिवारी वांट्स टू कम इन, लेकिन एक चीज मैं भी आपको याद दिला दूं, इन पिछले 20 सालों में 18 साल चीफ मिनिस्टर कौन रहे हैं, जरा सोच के देखिए। हाँ, सबसे पहले। दूसरा, आपने क्राइम की बात की, तो क्राइम की बात तो ऐसे है
श्रेया जी, आप अभी बिहार हमको सुधरा है। देखने को मिल रहा है कि जनसुराज के एक सपोर्टर को जो बाहुबली था उसको मार दिया गया। आनंद सिंह नाम के इंसान हैं, जेडीयू के नेता हैं, कैंडिडेट भी हैं, उनका नाम आया है और आज लल्लन सिंह जो कि जेडीयू के हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं भैया ये तो कोई साजिश लग रही है। आपको डाटा दिखाना चाहूंगा। लेकिन 2005 तो ये आप डेटा से पहले तो ये बताइए, चुनावी हिंसा में 700 a लोग man मारे गए। accused of murder who's a candidate of the JDU is being supported by JDU leaders openly. तो लॉ एंड ऑर्डर की जब आप बात करते हैं थोड़ा अपना भी देख लेना चाहिए। नहीं, वो जेल के अंदर गए ना, इसी बिहार में मुकदमे भी होते थे लेकिन जेल नहीं जाते थे लोग। मुकदमे तक नहीं होने दिया जाता था। सीमा विश्वास का केस यहाँ पता होगा, लोगों को तमाम सारे केसेज होते थे, इतने मर्डर हुए, आईएएस की पत्नी के साथ रेप का कांड हुआ, उसमें केस तक दर्ज नहीं हुआ, मुकदमा तक दर्ज नहीं होता था। तमाम सारे ऐसे मामले हैं, उसको गिनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कहेंगे फिर जंगल राज की आप याद दिलाते। उदय जी को बड़ा मजा आ रहा है। आज के उदय जी आती हूँ आपके हैं। पास। ठीक है, घनश्याम तिवारी जरा हाथ उठा रहे हैं, इनको देते हैं मौका बोलने का। बोलिए घनश्याम जी। Two very quick points. I know Uday ji has to come in. One, the ADR data says 2 out of 3 sitting BJP MLAs in Bihar have criminal charges. 2 out of 3. Let that sink in. And second, that BJP glorifies Adityanath ji as Sant. Every news channel published in 2017 when he became the chief minister, the number of criminal cases against him. 2 मुकदमे IPC धारा 153A, 2 मुकदमे IPC 295, 2 मुकदमे IPC 307. This is every news channel. And in these cases, has the state written him as Yogi Adityanath or Ajay Singh Bist? It is a shame that BJP spokesperson thinks that calling Adityanath ji Ajay Singh Bist, which is the name in his affidavit, which is the name in these cases, is an insult to Yogi Adityanath. This is the kind of fake logic that they bring so that people are derailed from the core topics of election. घनश्याम जी ये भी याद कीजिए कि आपने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या क्या बातें कही हैं। मैं तो एक उदाहरण दिया कि आप उनका संत का नाम नहीं लिया जाता। आप भी जानते हैं कि जिस दिन से संत दीक्षा ले लेता उसका नाम हो जाता, उसको आप नाम नहीं लेकर पुकारते। आपने जान इन मुकदमों में उनका नाम क्या लिखा हुआ है? बताने के लिए नाम पुकारा, आपने उनको बदनामी करने के लिए किया। नहीं तो फिर आप जो बोल रहे हैं पप्पू पप्पू, तो वो भी तो बदनामी करने के लिए बोल रहे हैं ना। तो इस हमाम में ऐसे से मैं वाक्य पूरा नहीं करूंगी, लेकिन इस हमाम में सब XYZ क्यों? तो गांधी जी की तारीफ की जा रही, गांधी के बंदर क्या किसी को पप्पू बोला तारीफ थोड़ी ना है। सुजाता जी, I'll give you 20 seconds then उदय जी। जब भरतनाट्यम की बात का इतना बुरा लगता है तो बता दीजिए मुजरे की बात किसने करी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस वक्त जरूरी जिस बात को करना है वो है सृजन स्कैम, और जो CAG की रिपोर्ट ने बताया है, जो आपने पिछले 20 साल में, उसके पहले के 15 साल को आप आरोप लगा रहे, ठीक नहीं कर पाए 20 सालों में, और अब आप इसलिए अप्पू टप्पू पप्पू करेंगे। इसका मतलब ये है ना कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। भागलपुर में जो 200 करोड़ का स्कैम हुआ है जो मॉल बनाने में, उसके बारे में बात करिए ना। ये सारी बातें हैं दरअसल जिसको आपने दबाना है। और जहां तक अजय सिंह बिष्ट की बात है ना, तो मैं उत्तराखंड से आती हूँ और मेरे ही बहुत पास ही में कॉलेज है जहां वो पढ़ा करते थे। तो वहां के तो सारे ही लोग उन्हें अजय सिंह बिष्ट के नाम से जानेंगे, तो उसमें उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? भाई ये नाम अगर माता पिता चाहे जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने दिया, उससे शर्म नहीं करनी चाहिए, उस पर गर्व करना चाहिए कि जिसने जन्म दिया उसका दिया हुआ नाम है। आप तो अजब तरह की बातें करते हैं आज। लेकिन सुजाता जी ऐसा है, जब महागठबंधन का कोई भी व्यक्ति करप्शन की बात करता है ना, वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके पोस्टर बॉय लालू प्रसाद यादव हैं, है ना? चारा घोटाला। तो जरा आप शायद नहीं आप भूल गए शायद कि जिस वक्त उनके ऊपर आरोप लगे तो ये NDA की सरकार नहीं थी, उस वक्त UPA की सरकार थी ना। इतनी हिम्मत है इनमें? अरे जिनके ऊपर नहीं, तो जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, जो भाजपा के लोग होते हैं, उनको बचाने की कोशिश ये करते हैं। हमने नहीं किया, लेकिन आप अगर उसी का राग अब तक आलाप रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपराध आपके लोग करते हैं उनको बचाते रहे, जैसे आनंद सिंह और तमाम आपके नेता जो कभी हत्या बलात्कार में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के देख लीजिए कितने हैं। ठीक है डॉक्टर। शाहबुद्दीन को कोई हम बचा रहे थे क्या? शाहबुद्दीन तो उसी राज्य के। अरे रुक जाइए भाई, डॉक्टर उदय को भी आने दीजिए। डॉक्टर उदय प्लीज गो हेड। लल्लन सिंह तो बचा रहे हैं ना अनंत सिंह को। एनीवे डॉक्टर उदय प्लीज गो हेड। जी आपके यहाँ से जब फोन आया था और मुझे टॉपिक लिखित स्वरूप में भेजा गया था तो लिखा गया था पप्पू टप्पू अप्पू। मुझे लगा ये OTT पे कोई सीरियल वेब सीरीज चल रही है, बहुत ढूंढा लेकिन कोई मिली नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगले बार इलेक्शन जो होता है ना वो वेब सीरीज का भी बाप होता है।
इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगली बार से ऐसे हमको खिड़कियों में मत बिठाइए। हमको एक वेब सीरीज जैसा कोई एक सेट लगा के दीजिए, वही तो एंटरटेनमेंट हो रहा है। पर एक बात मैं जरूर कहता हूं, पप्पू तप्पू अप्पू इज अ रिदमेटिक विच हैज all elements of becoming popular in a voting population like Bihar. Now, coming to the various points which are raised, people have talked about 2/3 of the candidates being criminal of one party. Are they going to say that their candidates does not have a single criminal charge? शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। नंबर 3, ये जो वोट फॉर डांस एंड ऑल दैट ये हो रहा है, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। दिस हैज बीन हैपनिंग इन एवरी इलेक्शंस। ब्यूटीफुली बीजेपी ड्रॉप्स समथिंग लाइक पप्पू टप्पू अप्पू। अब अगले दिन इसको काउंटर करने में कांग्रेस और एसपी का सारा खून खर्च हो जाएगा। वो रियल इश्यू लाएंगे ही नहीं, रियल इश्यू लाते नहीं, आइडेंटिफाई होते नहीं, और फिर हारने के बाद वोट चोरी और ईवीएम के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। Why are you taking note of it? Why don't you raise the real points? Why don't people believe when you raise the real points that you are the people, those who will solve it? When you No. Why will they raise real points, Dr. Uday? Why will they raise real points? मुद्दे की बात why will they do? The point is, it is easier to deliver rhetoric than actually deliver jobs. Then It is easier to build abuse politics than to build bridges that don't collapse. Rhetoric will be replied by theatrics, and theatrics will be replied by another rhetoric, और यही इलेक्शन में चलते आ रहा है। Unfortunately, BJP dominates the agenda and others follow it. No, last week Rahul Gandhi was dominating the agenda. Again, by nothing substantial, by Bharatanatyam and dance. Now you have Katta and you have Holoin thrown in as well. Where the Prime Minister for some reason has decided he needs to speak about Lalu Prasad Yadav's family celebrating Halloween. आप जरा त्रिपाठी जी, आप मुझको एक बात बता दीजिए, क्या दिक्कत है भाई? लालू प्रसाद यादव की बहू जो है, तेजस्वी यादव's wife, is a Christian. The world knows it. Halloween is a Christian tradition. If the woman of the house, the bahu of the house wants to celebrate her tradition, उसमें भी प्रॉब्लम है। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा कि आज देखिए प्रधानमंत्री ने क्या बोला, आप छठ का अपमान करते हैं, ये कहा गया है कि आप छठ का अपमान करते हैं, जो आपका पर्व है, जिस स्टेट से आप आते हैं, बिहार से, उसका आप अपमान कर रहे हो। उसमें एक शब्द भी लालू परिवार ने नहीं बोला। उसने बोला कि राहुल गांधी ने गलत बोला। हाउ हैव दे डन अपमान? यू टेल मी, हाउ हैव दे डन अपमान? ये आप अपमान बोल रहे हैं, समझाइए तो, अपमान किया कैसे? नहीं, छठ को कोट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि छठ वो राहुल गांधी थे, मैं लालू प्रसाद यादव की बात नहीं, क्योंकि अलायंस है ना, तो अलायंस को आप कैसे छोड़ सकती हैं? यही बोला गया है ना। उन्होंने कहा एक तरफ उनके लोग छठ का अपमान करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के गठबंधन के लोग विदेशी त्योहार मनाते हैं, इसलिए कहा गया है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं कोट नहीं किया गया, कोट करते हुए कहा गया कि एक तरफ आप छठ का अपमान करते हैं, दूसरी तरफ आप विदेशी त्योहार मनाते हैं। लेकिन सिराज जी, एक बात और कहना चाहूंगा, आप कहें कि एजेंडे पर बात नहीं हो रही है। हमने तो नारा दिया है कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, और डेवलपमेंट की बात की जाए तो बिहार पिछले 20 साल में, भले ही इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, आप आइए यहाँ सड़क पे डेवलपमेंट दिखेगा आपको। जो बिहार 2005 से पहले यही अटल जी कहते थे कि सड़क नहीं है, गड्ढा है, यहाँ गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, ये पता नहीं चलता था। आप सड़क दिखेगा, आपको बिजली 24 घंटे दिखेगी यहाँ पे आपको। उसके अलावा रोजगार के लेकर काम चल रहा है, 50 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, आगे 1 करोड़ का टारगेट रखा गया है। हर जिले में स्किल सेंटर, मेगा स्किल सेंटर बनाने की बात की जा रही है, मेगा हब इंडस्ट्रियल सेंटर बनाने की बात की जा रही है। तो इतने सारी चीज काम तो हो रहा है, इंडस्ट्री बनाने की बात हो रही है, काम तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोल रही है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है सर, मेरी रिपोर्ट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद वाया द नीति आयोग इज सेइंग दैट बिहार इज द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट इन दिस कंट्री। तो काम हो कहाँ रहा है? मार्च पे हो रहा है, क्योंकि बिहार में तो सर्वेंटली नहीं हो रहा। घनश्याम तिवारी, गो अहेड प्लीज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीजेपी। जो अभी उदय जी कह रहे थे कि शीशे में रहने वाले लोग दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। 15,000 करोड़ बीजेपी ने चंदे में जमा किया है पिछले 11 साल में। 15,000 करोड़ चंदे में। प्रधानमंत्री अपने आप को चाय बेचने वाला कहते हैं, तो भारत के सबसे अमीर आदमी को अपनी जेब में बिठा करके
सो शीशे में रह करके 200 पे पत्थर फेंकना बीजेपी की ताकत है. बट द पॉइंट इज a party that has forced every Bihari family to think about migrating for education or job or well-being or health will be forced out of Bihar, because people of Bihar are seeing that this is a Gujarat factory plan. BJP is today a Gujarat party that is there in Bihar because it enables it to extract from Bihar. They have done nothing. They have given nothing to Bihar. They have only extracted from Bihar, and no amount of pappu, tappu, appu, katta, whatever the Prime Minister says. If a future generation Googles that भारत का सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन था, by far top 100 entries will be the current Prime Minister of India. So people of Bihar will not be fooled. This is a generation, irrespective of the poverty, it's a generation that has information in its hands. एक बात कहना चाहूंगा. मेरे पास 1 मिनट है. एग्जाम्पल के साथ. रवि जी आप, उसके बाद उदय जी, एंड लास्ट वर्ड टू माय फ्रेंड सुजाता जी. प्लीज गो अहेड रवि जी. श्रेया, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं क्योंकि मैं बिहार में हूं, अभी चंपारण में हूं, यहीं का रहने वाला हूं. मैं गांव घूम रहा हूं. 2020-21 में जब कोरोना आया है तो तमाम लोग अपने अपने घर गए. यूपी के लोग भी गए, बिहार के लोग भी अपने गांव आए, और यहाँ बच्चे जो स्टूडेंट्स है जो आईटी सेक्टर के, आज यहाँ रह के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. ये माहौल है. 30% बच्चे यहीं रह गए क्योंकि यहाँ बिजली है, यहाँ सड़क है, यहाँ कानून व्यवस्था. देखिए, पर्सनल राइवलरी और छोटी मोटी एक दो घटनाओं को छोड़ दीजिए तो कानून व्यवस्था का डर नहीं है. लोग रात में 12 बजे यहाँ गाड़ी से निकल सकते हैं. महिलाएं बाहर घूम सकती हैं जो 2005 से पहले नहीं घूम सकती थी. तो ये चीजें हुई हैं यहाँ पे, तो अलग बात है. लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ जमीन पे डेवलपमेंट है और लोग यहाँ रहना चाहते हैं. अब रिवर्स कहीं ना कहीं पलायन हो रहा है. लोग वापस आ रहे हैं यहाँ पलायन काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ रह के वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं. तो ये चीजें दिखनी भी चाहिए. ये हो सकता है हमको मार्केटिंग करनी पड़ेगी. बिहार की मार्केटिंग आपको लगता है कमजोर है तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी हमें भी. को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन मैं तो सिर्फ नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ. सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो आप ही के एलाइज हैं. डॉक्टर उदय, 10 seconds, no more. It's unfortunate that the land which gave Champaranya fight, it's a land which gave Jayaprakash Narayan movement. इसके इलेक्शन के कैंपेन के हाल इसके कैंपेन के हाल देखिए क्या है कि यहाँ विरोधी पक्ष को हाथ में मुद्दे उठाने के लिए भी टाइम नहीं है. दे आर प्लेइंग एट द हैंड्स ऑफ the political party in power. That shows the intellectual bankruptcy, in my opinion, of the entire political process. I feel very sad for the people of Bihar. Sujata ji, and therefore my last, while Pappu, Tappu, Appu is causing much outrage and heartburn in the Mahagathbandhan, the fact is that one of your leaders, Samajwadi Party leader, only on our screens has said, Yogi ji to फूक के आते हैं, आप फूक के आएंगे तो कुछ भी बोलेंगे. अब इज दिस द भाषा दैट यू आर गोइंग टू यूज फॉर अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर? Exactly. As far as what the Samajwadi Party leader has said, I think he comes from Uttar Pradesh, and in Uttar Pradesh, this is the kind of politics that Yogi Adityanath ji wants, and he's getting what he wants. So let's not talk about him. But as far as the issues of Bihar are concerned, you know very well that I've been very fortunate to have been on your shows, many of them on Bihar, and every time we have been trying to talk about the CAG report, every time we have spoken about the corruption in the various departments, and you know very well that yours is probably one of the very, very, very few programs where we get this opportunity, because the BJP creates this narrative and the entire Godi media is made to debate on that. This is not the issue which is debated in those, then those the channels. opposition has to be smart. No. Then people like Amit Jamai have to be told कि भाई ये गांजा टाइप बातें मत करो. देखिए वो so that जब मुद्दा remains jobs, मुद्दा remains the opposition falls for it. Obviously the BJP will do भांगड़ा. नहीं, तिवारी जी को पता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या हो रहा है, इसलिए वो अपनी सही तरीके की रणनीति इसके साथ कर रहे हैं. लेकिन मैं जानना चाहती हूँ that when you talk about Bihar, we were talking about Champaran. I am surprised that the spokesperson is from Champaran and he doesn't know that there were a few young men who started walking from Champaran right up to Delhi against the Agniveer Yojana. Did he stand by him? He's saying हम सबके साथ खड़े होते हैं. कहाँ खड़े हुए आप उनके साथ? जब पेपर लीक होते हैं तो क्या आप उन लोगों के साथ खड़े होते हैं या डंडे मारने में आप समर्थन करते हैं? These are the main issues.
जांच होती है, राजस्थान में भी पेपर लीक होता है, भूल रही है। जिन पुलिस वालों की पिटाई जांच होती है और उसके बाद दोबारा पेपर लीक हो जाता है। देश की विडंबना ये है। देखिए, आपके साथ दिक्कत ये है कि आप लोग का परसेप्शन ये है कि करप्शन आपके दौर में ही होता है, जंगल राज आपके दौर में होता है, तो परसेप्शन चाहिए। हमारे ऊपर चिपकाना नहीं, चिपका नहीं पाएंगी। ये चिपकाने की जो कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है। चलिए हो गया कि आपने भ्रष्टाचार किया है, हर क्षेत्र में किया है। एकदम गलत बात, भ्रष्टाचार का आरोप आपके ऊपर है। भ्रष्टाचार तो महागठबंधन ने भी किया है ना, तो भ्रष्टाचार की बात तो दोनों साइड नहीं करें। चलिए हो गया, डन, वी आर डन। आई एम श्योर व्यूअर्स आर थिंकिंग what is it that we are even discussing, but dear viewers, what can we do if the Prime Minister speaks in Bihar, if Yogi Adityanath speaks in Bihar, and we have the sort of reactions that are coming in from the opposition, we have no option but to speak about it. मुद्दे की बात जरा कमी होती है इलेक्शंस में. We'll leave it there for the moment. Thank you everyone. Ravi ji, namaskar. Uday ji, thank you. Sujata Paul, thank you very much. You can smile now. And Ghanshyam Tiwari, good to have you on the show. On that note, ladies and gentlemen, a break. There's more on the other side. Do stay with us.